ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੈਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। बट ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਨਫਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। And this prefix notation is called polish notation। और जो इसकी fundamental property है polish notation दी, वो की है that the order in which operations are to be performed is completely determined by positions of operators and operands in expression, right? Accordingly, one never needs parenthesis when writing expression in polish notation। And in the similar manner, there is a reverse polish notation which refers to the notation in which operator is placed after its two operands, and this one is called postfix notation। तो हम ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। there is a notation infix notation a plus b, prefix ਜਾਂ polish notation ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ plus ab, and ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ postfix ਜਾਂ reverse polish notation ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ab plus। ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, right? Convert the following infix expressions to prefix and postfix forms। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ a plus b multiplied by c, ਤਾਂ prefix ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, plus a multiplied by b and then c। and in the postfix form it will be written as a b c multiplication then plus। and in the similar way second expression a plus b division by c plus d, then in this case prefix will be written as division then plus then ab then plus then cd, and in the postfix expression it will be written as ab plus cd plus division। so जिस टाइम कंप्यूटर ने अर्थमैटिक एक्सप्रैशन इवैल्यूएट करना है, जो तुसी इनफिक्स नोटेशन दे अंदर राइट किया होया, तो उसनू वो किस तरीके दे नाल दो स्टैप्स ने जिहड़े मेनली वो फॉलो करेगा। फर्स्ट इट विल कन्वर्ट एक्सप्रैशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन एंड देन इट विल इवैल्यूएट दैट पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इवैल्यूएशन किवें करनी है आपां पोस्टफिक्स एक्सप्रैशन दी, सब तो पहला आपां वो देखांगे। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ that must be written in postfix notation। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, it will use a stack to hold operands and evaluate p, right? p is postfix expression। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ वो की है इनिशियली, अगर आप एल्गोरिथम देखिए तो दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन p and it is written in postfix notation। तो in this step 1 ਤੁਸੀਂ p जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ postfix notation given है उसके एंड ਦੇ ਉੱਪਰ right parenthesis ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ step 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ postfix expression ਨੂੰ left to right scan ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ step 3 and 4th ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ repeat ਕਰਨੇ ਨੇ till ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੈਂਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਆਪਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਸਟੈਪ 4, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ A ਜਿਹੜਾ A part है, remove the top 2 elements of stack where A is the top element, right, and B is the next 2 top element। दो उपरले दो top elements ने जिहड़े ਉਹ pop करने ने, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ in between ਉਹ ਵਾਲਾ operator ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ evaluate ਕਰ ਦੇਣਾ, right, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ top element ਹੋਏਗਾ, ਔਰ B ਹੈ ਉਹ next to top element ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ sequence ਹੋਏਗਾ B ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ operator ਤੋਂ A ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। and then place the result of step B back on stack, और वापस उस रिजल्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
स्टैक के उपर पुश कर देना। इन द सिमिलर वे लैफ्ट टू राइट कद तक तुसी ये करते जाना जब तक तुहानूं राइट पैरेंथीसिस एनकाउंटर नहीं हो जाती। और उस तो बाद चों तुसी जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो टॉप एलीमेंट होएगा स्टैक का, उसनूं तुसी वैल्यू वेरीएबल के अंदर कॉपी कर दो एंड आफ्टर दैट यू कैन एग्जिट फ्रॉम देयर। नाउ हुण ये तो होगी पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन की इवैल्यूएशन। बट हुण अगर तुहाडे कोल इनफिक्स एक्सप्रैशन दिता है तो पहला उसनूं तुहानूं पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना पेगा। तो उहदे लई अपने कोल की एल्गोरिदम है कि तुहाडे कोल एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन है P, राइट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लैफ्ट टू राइट यूजिंग ऑपरेंड्स फ्रॉम Q एंड ऑपरेटर्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक। इन्हां दोनों तो मिला के तुहाडे कोल एक P जिहड़ा पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन बनेगा। तो इनिशियली तुहाडे कोल हुण जिहड़ा Q है वो अर्थमैटिक एक्सप्रैशन होएगा जो तुहाडे कोल इनफिक्स नोटेशन के अंदर राइट किया होया। तो एल्गोरिथम कित्थों स्टार्ट होएगा कि वो सब तो पहला एक स्टैक लोगे और उस स्टैक के अंदर लैफ्ट पैरेंथेसिस है जिहड़ी तुसीं वो पुश कर दोगे और एक राइट पैरेंथेसिस है वो बेसिकली जो तुहाडा इनिशियल ही तुहाडा अर्थमैटिक एक्सप्रैशन है Q उस दे एंड दे उपर राइट पैरेंथेसिस ऐड करोगे। तो स्टैप 1 के अंदर तुसीं की कर रहे हो लैफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक के उपर एंड राइट पैरेंथेसिस एंड ऑफ द Q ऐड कर रहे हो। एंड इन दिस स्टेप 2 स्कैन Q फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप्स 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ Q अंटिल द स्टैक इज एम्पटी। जब तक तुहाडे कोल एम्पटी स्टैक टॉप ऑफ स्टैक नल नहीं हो जाता उद तक तुसीं की करना है लैफ्ट टू राइट जिहड़े Q जिहड़ा तुहाडा अर्थमैटिक एक्सप्रैशन है उसनूं तुसीं स्कैन करते जाना है। एंड इन दिस स्टेप 3 इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड अगर तुहानूं ऑपरेंड मिल रहा है स्कैनिंग के अंदर उसनूं तुसीं पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के उपर बाद ऐड कर देना। अगर तुहानूं लैफ्ट पैरेंथेसिस मिल रही है तो उसनूं तुसीं स्टैक के अंदर ऐड करोगे। एंड अगर तुहानूं ऑपरेटर मिल रहा है तो ऑपरेटर जो स्टैक तुहानूं लैफ्ट टू राइट स्कैनिंग के अंदर मिल रहा है उसनूं आपां यूजली दिस सिंबल के नाल डिनोट कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर तुसीं की करना है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक कंटिन्यूसली कब तक तुसीं स्टैक के अंदरों पॉप करने हैं जब तक तुहानूं ऑपरेटर्स मिलते जाएंगे। एंड ऐड टू P ईच ऑपरेटर जो भी स्टैक के अंदरों तुहानूं ऑपरेटर्स पॉप करोगे उन्होंने कंटिन्यूसली ऑपरेटर किथे वो तुसीं ऐड करने ने P के अंदर पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के अंदर विच हैज़ सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस। या तो वो बराबर की प्रेसिडेंस होवे या उस तो हायर होवे जो तुसीं तुहानूं स्कैनिंग के अंदर ऑपरेटर मिल रहा है, राइट। तो उस केस के अंदर तुसीं की करोगे उसनूं उन्होंने पॉप कर लोगे और उन्होंने पॉप करके जिहड़े तुहाडे ए वाला ऑपरेटर है इसनूं की करोगे स्टैक के उपर ऐड कर दोगे, राइट। अगर तुहाडे कोले हुण मीन उन्होंने पॉप करके तुसीं की करना हो पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के उपर ऐड करने ने और जिहड़ा तुहाडा इत्थे ऑपरेटर लैफ्ट टू राइट स्कैनिंग के अंदर मिले उसनूं तुसीं स्टैक के अंदर पुश कर देना। तो इफ राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हुण अपने को लैफ्ट पैरेंथेसिस भी देख लिया ऑपरेंड भी देख लिया ऑपरेटर भी देख लिया बच गया अपने को राइट पैरेंथेसिस। अगर अपने को राइट पैरेंथेसिस मिलती है स्कैनिंग के अंदर दैन उस केस के अंदर तुसीं की करोगे रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू P ईच ऑपरेटर अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। उस तो बाद चो क्योंकि आप की कर रहे हैं जिन्ने ऑपरेंड्स ने ऑपरेंड्स आप ऑलरेडी पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के अंदर ऐड कर रहे हैं सिर्फ आप ऑपरेटर्स ही आप स्टैक के अंदर पुश कर रहे थे। तो जिन्ने भी हुण ऑपरेटर्स होणगे उसके अंदर जब तुहानूं राइट पैरेंथेसिस मिल जाती है स्कैनिंग के अंदर तो जिन्ने ऑपरेटर्स बचे होंगे तुहाडे स्टैक के अंदर वो सारे के सारे तुसीं की करने हैं कद तक जब तक तुहानूं लैफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती स्टैक के अंदर उन्होंने रिपीटेडली पॉप करते जाओगे और अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन के अंदर ऐड करते जाओगे और आफ्टर दैट यू विल रिमूव द लैफ्ट पैरेंथेसिस फ्रॉम द स्टैक एंड उस तो बाद तुसीं एग्जिट कर जाओगे। तो ये लिए अपने को एक एग्जाम्पल है कन्वर्ट Q इक्वल्स टू A प्लस B मल्टीप्लीकेशन बाय C डिवीजन बाय D। इसनूं हुण आपां पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर पहला कन्वर्ट करांगे। तो सोल्यूशन के अंदर आपां इनिशियली की कर रहे हैं जे आपां इत्थे देखिए तो सब तो पहला आपां पुट राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ Q एंड पुट लैफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लैफ्ट जिस टाइम तुसीं स्कैनिंग कर रहे हो सब तो पहला तुहाडे कोल ऑपरेंड A आएगा A मिलिया इसनूं तुसीं P के अंदर ऐड करोगे दैन प्लस मिलिया इट इज़ एन ऑपरेटर इसनूं तुसीं स्टैक के अंदर ऐड कर दोगे क्योंकि अजे तक उत्थे कोई भी जिहड़ा स्टिल ऑपरेटर है ही नहीं है। लैफ्ट पैरेंथेसिस मिली उसनूं भी तुसीं स्टैक के अंदर मूव करोगे। ऑपरेंड B मिलिया इसनूं तुसीं P के अंदर ऐड करोगे। ऑपरेटर आस्ट्रिक साइन दैट मीन मल्टीप्लीकेशन साइन मिलिया तो इसनूं तुसीं स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। उस तो बाद जो तुहाडे कोल है C
सी आया, सी नूं तुसीं पी दे अंदर मूव करोगे, राइट पैरेंथेसिस आ गई, इहनूं तुसीं जिस टाइम तुहाडे कोल राइट पैरेंथेसिस आ गई हुण तुसीं की करना है, स्टैक दे अंदरों तुसीं जिहड़े ऑपरेटर्स ने वो पॉप करोगे और उन्हां नूं कद तक पॉप करोगे जब तक तुहानूं लैफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो जाती, राइट। उस तो बाद हुण तुहाडे कोल की है ओके, सी तो बाद राइट पैरेंथेसिस है कि हुण नाउ डिवीजन है। हुण उस तो बाद जिहड़ी तुहाडे कोल जब तुहानूं लैफ्ट पैरेंथेसिस मिल गई उन्होंने तुसी पॉप कर लिया और दैन ऑपरेटर जो तुहाडे कोल डिवीजन ऑपरेटर है वो तुहानूं मिलिया स्कैनिंग के अंदर, तो हम प्रेसिडेंस है जिहड़ी जिहड़ी तुहाडी इस दी डिवीजन दी दैट इज हायर दैन प्लस ऑन स्टैक एंड नो पॉप इज पॉसिबल, राइट। सो पुश डिवीजन ऑन दी स्टैक, राइट। हुण पहला किसी तुहाडे कोल उत्थे उस तो लोअर प्रेसिडेंस दा ऑपरेटर सी, बट हुण इत्थे की है हायर प्रेसिडेंस है इसकी जिहड़ी तुहाडे कोले ये मिलिया। तो इस केस के अंदर तुसीं की करोगे, पुश राइट सॉरी डिवीजन सिंबल ऑन स्टैक एंड देन ऑपरेंड डी इज एनकाउंटर्ड, देन पुट इट ऑन पी एंड देन राइट पैरेंथेसिस एंड नाउ यू विल पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड एट द एंड यू विल रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस टू। नैक्सट है अपने को अगर तुम इनफिक्स ऑपरेशन एक्सप्रैशन नूं प्रीफिक्स एक्सप्रैशन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उस केस के अंदर तुहाडे कोल की है, suppose Q is an arithmetic expression written in infix notation and this algorithm finds the equivalent prefix expression P. Now step 1 reverse the input string. Input string जो तुहानूं given expression given arithmetic expression उसनूं totally तुसी reverse कर लेना है। Step 2 examine the next element in the input. Reverse means जे right parenthesis है लिखोगे उन्होंने right parenthesis ही, उन्होंने left नहीं बना देना, right? Just ओदा order change कर देना है। तो examine the next element in the input. Step 3 if it is operand, अगर operand मिल रही है तो उसनों output string दे ऊपर add करोगे, अगर closing parenthesis मिल रही है तो उसनों stack दे ऊपर push करना है, अगर कोई ऑपरेटर मिल रहा है दैन उस केस के अंदर तुसी चेक करोगे अगर तुहाडा स्टैक एम्प्टी है तो ऑपरेटर नूं स्टैक दे अंदर पुश करोगे, अगर टॉप ऑफ स्टैक कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस है दैन ऑपरेटर नूं तुसी स्टिल दे अंदर पुश करोगे स्टैक दे ऊपर। अगर तुहाडे कोले जिहड़ा सेम या हायर प्रायोरिटी है जो ऑपरेटर तुहानूं मिलिया उसदी जो टॉप ऑफ स्टैक दे ऊपर पिया ऑलरेडी ऑपरेटर, तो उस केस के अंदर तुसी की करोगे फिर भी पुश कर दोगे स्टैक दे ऊपर ऑपरेटर नूं। एल्स अगर उस तो लोअर प्रायोरिटी है दैन या कह सकते हैं कि लोअर प्रेसिडेंस है तो उस केस के अंदर तुसी ऑपरेटर नूं पॉप करना है स्टैक के अंदरों और उसनूं आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना एंड यू विल अगेन स्टार्ट स्टैप 5। और अगर हम तुहाडे कोल ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलती है तो पॉप ऑपरेटर्स ने जिहड़े सॉरी स्टैक के अंदरों ऑपरेटर्स नूं पॉप करोगे और उन्होंने आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते जाओगे अंटिल अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, राइट। एंड देन पॉप एंड डिस्कार्ड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जब तुहानूं क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गई उस तो पहले वाले सारे एलिमेंट्स जिन्ने भी ऑपरेटर्स ने तुसीं पॉप कर लोगे और उसनूं तुसीं अपनी जिहड़ी आउटपुट स्ट्रिंग है उसके अंदर ऐड करते जाओगे और लास्ट के ऊपर जो तुहाडी क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो तुहानूं मिलेगी उन्होंने पॉप करके उसनूं डिस्कार्ड कर देना, राइट। इफ देयर इज मोर इनपुट गो टू स्टैप 2, अगर इस तो ज़्यादा होर अगे एलिमेंट्स है ने फर्दर तो तुसीं वापस स्टैप 2 ते जाओगे। इफ देयर इज नो मोर इनपुट दैन अनस्टैक द रिमेनिंग ऑपरेटर्स, दैट मीनस सारे जिन्ने भी ऑपरेटर्स उसके अंदर स्टैक के अंदर पए होंगे उन्होंने तुसीं पॉप कर लोगे और उन्होंने आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दोगे एंड वापस तुसीं अपनी आउटपुट स्ट्रिंग नूं रिवर्स कर लोगे, राइट। तो लास्ट हुण अपने कोल एग्जाम्पल है कि आपां इस जिहड़ा पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन गिवन है इसनूं आपां कन्वर्ट करना है, सॉरी इवैल्यूएट करना है। तो ये लिए अपने को सब तो फर्स्ट है ट्रांसलेट पी बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड इनटू इट्स इक्विवेलेंट इनफिक्स एक्सप्रैशन। तो सब तो पहले आप इसनूं इनफिक्स एक्सप्रैशन के अंदर आप कन्वर्ट करांगे। तो ये लिए अपने को स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और सेकंड स्टेप है जो इवैल्यूएट दैट इनफिक्स एक्सप्रैशन। स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रांसलेट ईच ऑपरेटर फ्रॉम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स नोटेशन। तो इस केस के अंदर अपने को की है पी इक्वल्स टू 12 दैन जो नैक्सट है 7 - 3 जिमें जिमें मतलब वो अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम जो तुहाडे कोले आ वाला एक्सप्रैशन बन जाएगा, राइट। ये वाले एक्सप्रैशन तो बाद हुण तुसीं इवैल्यूएशन है जिहड़ी उसके ऊपर लगाओगे ऑपरेटर्स दी। इवैल्यूएशन तो बाद तुहाडे कोले जिहड़ा रिजल्ट है दैट विल बी 15। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।